Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start today's video for class 12 from the solid states. Now today's our topic is that packing efficiency for FCC, phase centered cubic unit cells and the arrangements of an atoms, packing of an atoms in one dimensional, two dimensional. Let's we start. Packing efficiency for face centered cubic unit cell. Packing efficiency for the face centered cubic unit cell. Now face centered cubic unit cell is that in which atoms are arranged not only at the corner but also on the faces of a cubic unit cell. And in last video we have already discussed that the packing efficiency for the simple cubic unit cell or body centered cubic unit cell. Now this is a simple cubic unit cell. Now here atoms are arranged not only at the corner, but also on the faces. Now here face is 1, 2, 3, 4, 5 और 6. Now 6 फेस होते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर. तो यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पर ही नहीं, कहाँ प्रेजेंट है, इसके फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है. So now from here this is the A be the age length of a cubic unit cell, and in cubic unit cell the age of the length, breadth and height are equal. Now so from here let A be the age length of a cubic unit cell. And relationship between age length A and radius R for face centered cubic unit cell, that is FCC. Here R is equal to A upon 2 root 2. Now volume of atom, that is atom just like as a sphere, that is 4 upon 3 pi r cube. So from here packing efficiency that is volume occupied by an atom per atom upon the volume of a unit cell. So from here we can write
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर एटम दैट इज वन एटम का जो वॉल्यूम होगी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम होंगे? कॉर्नर पर 1 और फेस पे कंट्रीब्यूशन एटम्स का होगा 3, क्योंकि एक फेस के ऊपर जो एटम है उसका कितना पार्ट हो रहा है? हाफ पार्ट। 6 फेस है तो 6 फेस पर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक पे हाफ हो रहा है तो हाफ ऑफ 6 दैट इज 3। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? कॉर्नर पर। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर प्लस में फेस पे, तो यहाँ 3 + 4, तो फ्रॉम हियर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल that is a cube. Now from here 16/3 a cube pi r cube. Now put the value of r in this equations. So from here and पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलती है? 100 एटम्स के रिस्पेक्ट में निकलती है। तो फ्रॉम हियर 16 पाई इंटू आर क्यूब दैट इज ए क्यूब अपॉन 2√2 का होल क्यूब इंटू ए क्यूब एंड इंटू में 3। नाउ फ्रॉम हियर ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, तो 16 पाई अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8 और √2 का क्यूब, यहाँ देखिए √2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2√2 इंटू में 3, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। Now from here 2 से 2 cancel, so from here that is pi upon 3√2 into 100, 3√2 into 100 that is equal to pi 3.14, 3 into 1.414 into में 100 that is equal to 74%. Now the packing efficiency for a face-centered cubic unit cell is that is 74%. Now the next is close packing in one-dimensional and two-dimensional. So let's restart. Packing of constituent particle in a crystal. Now packing of constituent particle in a crystals, we can do it by 3 types: in one dimensional, in two dimensional and in a 3-dimensional. But before for going on one dimensional, two dimensional and 3-dimensional, we will understand that what is the coordination number. Coordination number. The number of nearest neighbor to any other constituent atom in a crystal
is coordination number. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस अरेंजमेंट के अंदर कोई भी एटम जितने एटम से टच होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कोई भी अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से, यहाँ कोई हमने एक एटम रखा है, तो यहाँ ये 1 2 3 और 4, एक एटम 4 एटम से क्या है, टच है, तो यहाँ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा. तो packing of constituent particles in one dimensional. One dimensional one dimensional packing, atoms are arranged only x-axis. There are only one layer of an atom is present. One atom is touch with other two atoms so the coordination number is 2. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, वन डायमेंशन के अंदर हम जो एटम्स है वो अरेंज करते हैं किसमें, एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही लेयर होती है इसमें. जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास क्या है, कोई एटम है, ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ क्या रख दिया, दूसरा एटम रख दिया, फिर इसके साथ ही हमने क्या रख दिया, एक और एटम रख दिया, इसके साथ ही हमने एक और एटम रख दिया, इसके साथ ही हमने क्या रख दिया, एक और एटम रख दिया. तो इसी तरह से हम सिर्फ एक ही लेयर के अंदर एटम्स को अरेंज करें along x-axis. Now this is one dimensional packing. In one dimensional packing here we see that this atom is touch with other two atoms. ये जो एटम है ये कहाँ से टच हो रहा है, एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से. तो कोई भी एटम, आप मान लीजिए इस वाले एटम की बात करोगे तो ये भी किससे होगा, दो एटम से ही अटैच होगा. तो यहाँ वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर एक एटम टू अदर एटम से टच होता है, तो इसीलिए यहाँ वन डायमेंशनल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 2, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नियरेस्ट नेबर टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल्स. नाउ टू डायमेंशनल पैकिंग. Dimensional packing the atoms are arranged x-axis
as well as y-axis, there are two type packing is possible. That is, first is two-dimensional square packing, and two-dimensional hexagonal packing. Now first of all, two-dimensional packing is that packing in which atoms are arranged not only x-axis but also on y-axis. Here two types of packings are possible, that is 2D square packing and 2D hexagonal packing. Now what is 2D square packing and 2D hexagonal packing we will discuss. 2D square packing. Arrangement of an atom, along x-axis or y-axis is same due to which the coordination number is 4, because in this type of packing is with 4 other atoms. For example, डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग क्या होती है, सेम होती है. फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमने कोई एटम लिए और उन्हें एक्स एक्सिस के अलोंग अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि एक लेयर तो हमने किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलोंग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एटम्स को अरेंज किया. अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग एक्स एटम्स को अरेंज करेंगे तो इस एटम के जस्ट बिल्कुल नीचे यहाँ 2 3, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये क्या होगा हमारे पास एटम्स के अरेंजमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. Atoms are arranged only x axis or y axis is the same. Now from here one atom is touched with 4 other atoms. For see that if we have see that this atom
Now here this atom is touched with 4 atoms, that is 1, 2, 3 and 4. If we see that any atoms, you can say that here, अगर हम ये वाला एटम देखें तो यहाँ पे ये वाला एटम भी किससे है, 4 एटम से टच होगा, दैट इज 1, 2, 3 और 4. इसलिए यहाँ इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. और इसका स्क्वायर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब यहाँ ये 4 साइड्स होती हैं, ये जस्ट लाइक क्या बना रही है, एक स्क्वायर बनाती है. यहाँ देखिए जैसे, ठीक है, तो यहाँ जस्ट लाइक ऐसे क्या है, ये स्क्वायर, इसलिए इसका नेम हुआ 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग. अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ये इससे टच, ये यहाँ, and it also form a square. So from here this is the 2-dimensional square packing. Now the next is 2-dimensional hexagonal packing. 2-dimensional hexagonal packing. Arrangement of atom along x-axis is different from the arrangement of atom along y-axis. Here one atom is touch with six other atom so here the coordination number is 6. Now from here the arrangement of an atom along x-axis is different from the arrangement of an atoms in y-axis. For example, if we arrange atoms along x-axis is this 2, here 3, 4, 5 और यहाँ पे 6. और y एक्सिस के अलोंग कैसे डिफरेंट है, तो मान लीजिए यहाँ हम इन 2 एटम्स के बीच में यहाँ कोई एटम रख दे, ठीक है, यहाँ इन 2 एटम्स के बीच में कोई एटम्स रखा, हमने इस तरह से अरेंज किया. नाउ फ्रॉम हियर, नाउ द नेक्स्ट इज सेम हियर एटम्स आर अरेंज्ड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ इन दोनों के बीच में ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है. अब यहाँ क्या है कि कोई भी एक एटम आप देखिए, वो एटम क्या है 6 अदर एटम से टच होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है. मान लीजिए हम ये वाला ही एटम्स देखते हैं, तो यहाँ इस एटम्स को देखिए आप, ये एटम कितने एटम से टच है. नाउ हियर 1, 2, 3, 4, 5
यहाँ ये 5 और देन 6। तो यहाँ एक एटम कितने एटम से टच है, 6 एटम से टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। आप देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, जैसे ये वाला एटम देखिए आप, मान लीजिए हम ये वाला एटम्स देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे भी एक एटम कितने एटम से टच है, 6 अदर एटम से टच है। सो फ्रॉम हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 and it form a hexagonal shape, so its name is two dimensional hexagonal packing। देखिए यहाँ पे जब हम इनको टच करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, जस्ट लाइक एज ए हेक्सागोनल बनाएंगे फ्रॉम हियर। नाउ दिस इज ए हेक्सागोनल and we see also that here from 3 4 5 and 6. Now it is also a hexagonal and the arrangement is only two dimensional, so we can say here two dimensional hexagonal packing. Now in next video we will discuss about the three dimensional पैकिंग। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।